Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the next chapter of science, that is food, its component and deficiency diseases. In this chapter we will study about the different components of food and their deficiency diseases. In previous chapter we have discussed about the need of food and the different types of food and their sources. Now let us discuss about the various chemical substances present in our food and their importance. यानी कि फूड में जो भी हमारे डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके इम्पोर्टेंस को हम अब पढ़ेंगे. Before discussing about these chemicals, let us know about our vehicle. We can say that petrol provides it energy to run, paint helps to prevent it from corrosion and give it a beautiful look, and engine oils help in its proper functioning. किसी भी व्हीकल को एनर्जी पेट्रोल से प्रोवाइड होती है. उसको पेंट किया जाता है ताकि वो कोरोजन यानी कि जंग से प्रोटेक्ट कर सके उसको और उसे ब्यूटीफुल लुक देने के लिए, और इंजन ऑयल उसे प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती है. सिमिलरली द वेरियस न्यूट्रिएंट ऑफ फूड प्रोवाइड अस विथ एनर्जी, हेल्प्स इन मेंटेनेंस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. उसी तरह जो फूड के हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. These are the main components of food. First is the carbohydrate and fats, also known as energy giving food. Protein, also known as bodybuilding food. Vitamins and minerals, known as protective food. And last is the water and roughage. These components are very important for our body. Rice, cereals, potato and fruits are the rich source of carbohydrates. It gives us energy. Carbohydrates can be subdivided into two main categories. First is the simple sugar, second is the complex sugar. In simple sugar, sucrose, fructose and glucose are the example. And the example of complex sugar is starch and glucose. Now the next topic is the test for carbohydrates. Now we are going to find out in which food we have carbohydrates, यानी कि कौन सी food में carbohydrate present होती है. As we know that carbohydrates contain sugar and starch. For this test we need iodine solution, a dropper and food that contain carbohydrate. यानी कि इस टेस्ट के लिए हमें एक ड्रॉपर की ज़रूरत होती है, आयोडीन सॉल्यूशन की, और ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि राइस, ब्रेड, पोटैटो, these are the example of carbohydrates. Here we take a potato for this test. Now we take dropper and then take some iodine solution, put it on the potato. What will we get? We get black blue kind of color if the substance contain carbohydrate. यानी कि अगर उस substance में carbohydrate present होगा तो iodine solution डालते ही उस substance का color black blue हो जाएगा. If we get black blue color, it indicates that in this food carbohydrates are present. You can also taste it on rice, bread. Now our next component of food is the protein. Proteins are very important. Proteins help in growth and repair of our body. प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है. अक्सर आपके पेरेंट्स आपको प्रोटीन वाले फूड खाने को कहते होंगे, लाइक एग, दाल, चिकन, कर्ड, बिकॉज राइट नाउ इट्स योर एज टू ग्रो. यानी कि आपकी एज जो है वो इस समय ग्रोइंग एज है. आपको इस समय प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो यू शुड ईट प्रोटीन कंटेनिंग फूड अ लॉट फॉर योर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी. इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन यू विल गेट प्रोटीन फ्रॉम दाल, सोयाबीन, चीज़ एक्सेट्रा. बट इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन you can eat egg, chicken, fish. All thing gives you protein. Now the next topic is the test for protein. We need test tube, copper sulfate solution, caustic soda and water for this test, and a food that contain protein. यानी कि ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो, लाइक दाल, सोयाबीन एक्सेट्रा, एनीथिंग यू कैन टेक. इस टेस्ट में हम टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट कॉपर सल्फेट डालते हैं. डाइल्यूट कॉपर सल्फेट मीन्स यानी कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा वाटर मिलाकर डालते हैं. उसके बाद
उसके बाद प्रोटीन कंटेनिंग फूड को पेस्ट बनाकर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। फिर ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप कास्टिक सोडा को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। नाउ यू विल गेट पर्पल कलरिंग इन फूड सैंपल सोल्यूशन, यानी कि जैसे ही हम कास्टिक सोडा को डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, आपको पर्पल कलर दिखाई देगा फूड सैंपल में, जिससे कि हमें ये प्रूफ होता है कि इस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। दिस टेस्ट ऑल्सो नोन एज बाइयूरेट टेस्ट। Our next component is the fat. Oil, ghee, butter, etc. are the example of fat. Fats give the double energy than carbohydrate give, यानी कि fats are also known as energy giving food, but ये carbohydrate से double energy provide करता है। Chemically fats are of two types, saturated and unsaturated. Saturated fats are solid at room temperature and are mainly obtained from animals like ghee, butter, etc. ये room temperature पे solid होते हैं और ये generally animal से obtain किए जाते हैं। But the unsaturated fats are liquid at room temperature and are obtained from plants. Unsaturated fat जो होता है वो liquid होता है और plant से obtain किया जाता है, like groundnut oil, mustard oil, soybean oil, etc. For the taste of fat, we need food that contain fat like butter and chips and a tissue paper. इस टेस्ट के लिए पेपर में बटर या चिप्स को रखेंगे, उसे क्रश करेंगे और फिर फूड मटेरियल को अलग कर देंगे एंड ड्राई द पेपर इन एयर। हवा में उस पेपर को ड्राई करेंगे। देन वी विल सी ऑयली पैचेस ऑन द पेपर। दिस टेस्ट प्रूव्स दैट फूड कंटेन फैट। Now the question is what happens if one eat too much of fat, यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फैट खाएगा तो उसके साथ क्या होगा। हम सभी ये जानते हैं कि फ़ैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हम फ़ैट को खाते हैं तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्मॉल अमाउंट ही हमारे बॉडी के लिए इनफ होता है। हमारी बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है। बट अगर हम इसे ज़्यादा अमाउंट में लेने लगेंगे तो ये हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू में कलेक्ट होता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी वेट को इंक्रीज़ करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इट लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। एंड द पर्सन बिकम लेज़ी, यानी कि लोग लेज़ी होते जाते हैं। ये आजकल के बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो जंक फूड को ज़्यादा खाते हैं, टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं। इन ऑर्डर टू रिमेन फिट एंड स्मार्ट, वन जस्ट टेक लेस जंक फूड एंड गो फॉर एक्सरसाइज डेली, यानी कि हमें फिट और स्मार्ट रहने के लिए जंक फूड को कम से कम खाना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। So this is the part 1 of this chapter, and in second part we will study about vitamins and minerals and their deficiency diseases. Thank you.